India's cleanest city, Indore, is now facing some uncomfortable, troubling questions after contaminated drinking water claimed 15 lives at least, with official reports revealing that warnings were raised years ago but corrective action remained inadequate. A recent union government assessment under the Jal Jeevan mission has found that over 36.5% of drinking water samples from rural Madhya Pradesh were not potable, pointing to serious risks in village water supply systems. The findings have gained urgency amidst the diarrhea outbreak in Indore's Bhagirathpura area, now linked to a pipeline leak and sewage contamination. Shockingly, a Madhya Pradesh Pollution Control Board report from 2016-17 had already flagged fecal contamination at Bhagirathpura and 58 other locations across Indore. Laboratory tests found dangerously high coliform levels, clearly indicating sewage mixing with groundwater resources used for drinking. The Jal Jeevan Mission survey conducted in late 2024 covered over 15,000 rural households. It found that in Indore district, only 33% of surveyed households received potable water, well below acceptable standards. Several districts reported zero potable water samples, while others showed alarmingly low levels. The survey also flagged operational failures, with over 1/3 of households lacking functional taps and many reporting irregular supply. Experts warn that safety issues are often underreported as contamination is not always visible or detectable by consumers. The tragedy in Indore has now reignited concerns over governance lapses, aging pipelines, sewage ingress, and ignored red flags, raising a critical question. How many warnings does it take before preventive action is enforced? Now, even as Indore struggles to come to terms with a tragic public health crisis, a News 9 special investigation has exposed the unsettling gap between official claims and ground reality. While the administration maintains that only a limited number of deaths have occurred due to contaminated drinking water, News 9's on-ground probe tells a far more disturbing story. With no official list released and safe drinking water still out of reach for many residents, serious questions arise over transparency, accountability, and administrative response. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई मौतें हुई है। प्रशासन इन मौतों को क्या छुपा रहा है, क्योंकि कलेक्टर का कहना है कि महज 6 मौतें हुई है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 8 मौतें हुई है। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि 7 मौतें हुई है। ऐसे में सच्चाई क्या है, इसी की पड़ताल करने हम भागीरथपुरा में पहुंचे हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मौतों का सच क्या है। जी, आपके यहाँ किसी की मौत हुई है और किसकी मौत हुई है? हमारी माता राम की। कितनी उम्र थी उनकी? 50 वर्ष। कब से वो बीमार हुई थी और उसके बाद सरकार ने, प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? 10 मिनट के लिए बीमार हुई थी सिर्फ हमारी माता राम। सिर्फ एक उल्टी और एक दस्त हुए। हमने रात में खाना बनाया, खाया सबने साथ में। सुबह मतलब उल्टी एक उल्टी और एक दस्त हुआ और हम हॉस्पिटल ले आए थे और ख़त्म हो गया। बस इतनी सी देर हुई। अब जो दोषी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, क्या कार्रवाई चाहेंगे आप उन पर? अरे उनको सबको हटा दिया जाए, मतलब उनको पद वापस कभी नहीं दिया जाए। मतलब जो सरकारी नौकरी है ना उनकी छीन ली जाए और उनके पास जो पैसा है वो भी मतलब जब्त कर लिया जाए। पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए ना, उन पे करना चाहिए। क्यों आज उन पे नहीं होगा तो कल दूसरा अधिकारी भी वही करेगा। उन पे होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होना चाहिए।
आज 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया उनको, बोले 4-4 महीने के लिए हटा दिया। तो 4 महीने हटा दिया तो वापस चढ़ जाएंगे ड्यूटी, उनको तो वापस पैसा मिलने लग जाएगा ना, 4 महीने का पैसा मिलेगा उनको, घर भी बैठेंगे। माता जी का निधन हुआ, क्या नाम? उर्मिला यादव। कितने दिन से वो बीमार हुए और प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? मैं वो एक दिन बीमार हुए खाली और दूसरे दिन चल बसे, प्रशासन ने भी कोई मेरी मदद नहीं की। वो जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें उनका नाम डाला गया है क्या? नाम तो लिख के ले गए, डाला गया। बाकी वो 5 मौतों में नहीं है उनका नाम? कौन सी पार्ट? जो कलेक्टर कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मौतें हुई है उसमें नहीं है। उसमें है ना, मेरा नाम आर्य नाम माता जी का। अब दोषियों पर क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए? तो गरीब आदमी मैं दोषियों पे क्या कार्रवाई करूँगा? आप नहीं, सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने दूषित पानी पिलाया जिसके चलते दर्जनों लोगों की मौत हो गई, आपको नहीं लगता कि उन पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर? देखो सरकार के आगे कोई सरकार नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। आपके घर पर किनकी मौत हुई है, कितने दिन इलाज चला और क्या कुछ मदद? 2 दिन इलाज चला और तीसरे दिन मौत हो गई। किनकी उम्र पिताजी हमारे नंदलाल जी पाल, कितनी उम्र थी? उनकी उम्र थी 75 के आसपास, 70-75 के आसपास। हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? अब होना ही चाहिए, वो तो अब क्या कर सकते हैं, नगर निगम के ऊपर होना चाहिए वो तो। दूषित पानी पिलाया। हाँ। साहब आपके यहाँ किसकी मौत हुई है? मेरी पत्नी की हुई है। क्या नाम है उनका और कितने दिन उनका इलाज चला? सरकार की ओर से क्या मदद हुई? इलाज क्या, उनका रात को 11 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई, तो रात भर उनको दस्त, उल्टी और चक्कर आना चालू हुआ। वो बैठने लायक भी नहीं रही, वो एकदम से आदी हो गई। वो घर में कोई नहीं, हम दोनों ही रहते हैं, तो मैं उसको ले जा नहीं सका। वो यहाँ नगर निगम की टीम घूम रही थी, तो फिर मैंने उनको बुला के लाया भाई को। वो आई, उनने बोला कि वहाँ लेके आओ। मैंने चल ही नहीं सकती, कहाँ से लेके आऊँ, मेरे से उठेगी भी नहीं। तो फिर वो घर पे ही आए, उनने घर पे आकर के देखा हालत, बोले हालत इनकी सीरियस हो गई है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। बोले आप एम्बुआई ले जाना है इनको। मैंने ठीक है। फिर वो आए तो मेरे से नहीं उठी, उनने सब मदद करके फिर गाड़ी में डाला एम्बुलेंस के अंदर और रास्ते में ले गए हम। तो रास्ते में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ रही है और बोलचाल भी नहीं रही, देख भी नहीं रही है। आपको लगता है कि हत्या का मामला दर्ज होना मैं तो चाहिए? ये चाहता हूँ कि आदमी एक मर्डर करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, और इनने तो 17, 18, 20 न जाने कितने मर्डर कर रिया है, तो इनको कितनी सजा दे रहे हो आप? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि इनको भी सजा मिलना चाहिए। On to some news of a major development from Sambhal in Uttar Pradesh, where an illegal mosque on government land was demolished overnight by locals even before the administration could carry out official action. Officials were scheduled to carry out the demolition on Sunday morning, but by then the structure was already gone. The land, spread over 439 square meters, had been reserved for the housing of poor families. Take a look at this ground report. संभल के सलेमपुर सालार गांव में अवैध सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद को खुद यहां पर ढा दिया गया था, लेकिन अब यहां पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो पहुंचा। आप देख सकते हैं कि प्रशासन का जो बुलडोजर है वो अब यहां से अवैध कब्जे के बाद जो यहां पर बची हुई मलबा था उसको हटा रहा है। दरअसल 2000 में यहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया के तहत जो गांव के गरीबों को ज़मीन आवंटित की गई थी और 2005 में यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद जब प्रशासन को शिकायत मिली तो उन्होंने इस कब्जे को हटाने के लिए मस्जिद को कहा। यहाँ पर बाकायदा मदीना मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन को आज सुबह 10 बजे यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई करके जो अवैध कब्जा था उसको हटाना था, लेकिन जो मस्जिद के लोग थे उन्होंने देर रात खुद ही बुलडोज़र लगा करके जो कब्जा था उसको हटा दिया था और पूरा मलबा साफ कर दिया था। थोड़ा सा मलबा यहाँ पर बचा था, जिसके बाद अब इस मस्जिद की ज़मीन पर तो आप देखेंगे कि प्रशासन का बुलडोज़र इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तहसीलदार और तमाम जो अधिकारी है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और इस वक्त यहाँ पर जो मलबा बचा हुआ है थोड़ा सा, उस मलबे को हटाने
हटाने का काम किया जा रहा है। 439 वर्ग मीटर की ये जो ज़मीन थी, इस पर मदीना मस्जिद बनाई गई थी, अवैध कब्जा करके किया गया था। और आज ये जो ज़मीन है, यहाँ से कब्जा हटाने के बाद जो गांव के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उन लोगों को इस ज़मीन का पट्टा यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर मदीना मस्जिद का वजू होता था, जो खुद ही मस्जिद के लोगों ने अपना तोड़ करके हटा दिया था। तमाम जो मस्जिद एक मंजिला यहाँ पर बनी हुई थी, उसको हटा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर सुबह एक बार फिर प्रशासन का बुलडोज़र पहुँचा है और जो भी यहाँ पर मलबा था, बचा हुआ चीज़ था, उन सभी को हटाने का काम करा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुँची हुई है और किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ का बाकायदा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो प्रशासन का बुलडोज़र अवैध कब्जा करके बनाई गई जो मस्जिद है, उसके जो मलबा बचा हुआ है यहाँ पर, उसको हटाने पहुँचा है। ये मस्जिद खुद बुलडोज़र के ज़रिए प्रशासन आज यहाँ पर करता, लेकिन उससे पहले ही जो मस्जिद के मोअज़्ज़िज़ लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद को खुद ही यहाँ पर बुलडोज़र के ज़रिए ज़मींदोज़ किया था। तो फिलहाल जो थोड़ा बहुत मलबा मस्जिद का बचा हुआ है, अब उसको ये बुलडोज़र इस वक्त यहाँ पर हटाने का काम कर रहा है। इस ज़मीन को आज गांव के गरीब लोगों के नाम पट्टा किया जाएगा। इतनी ज़मीन थी जिस पर मस्जिद बनी थी अवैध तरीके से, और क्या कदम प्रशासन ने उठाया है? तहसील संभल में सलेमपुर सार और फाजीपुर गांव है। यहाँ गाटा संख्या 537 के ऊपर 1339 वर्ग मीटर भूमि पर लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व एक मस्जिद बना करके कब्जा किया गया था। और इस कब्जे को धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय के अंदर पूरा वाद चला, एक पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। उसके बाद 1 महीना अपील का समय होता है, वो अपील का समय भी दिया गया और उस अपील के समय के साथ साथ नोटिस भी दिया गया। और जो नोटिस का समय आज समाप्त होना था, उससे पहले स्वयं ही कमेटी के सदस्यों ने इस कब्जे को हटा लिया और जो अवशेष कब्जा था वो हमारे द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया। सर, जो ज़मीन बची है, अब जो कब्जा हटाया गया, अब इस ज़मीन का क्या किया जा रहा है? आज जिस भूमि पर 20 लोगों को, जो निर्धनतम परिवार है ग्राम के, उनको पट्टा दिया गया है ताकि जिनके पास कच्चे मकान हैं उनको भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक नया और पक्का मकान मिले। सर, मेरा आखिरी सवाल, जो संभल में अवैध कब्जे हो रहे हैं, खासतौर से जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं, उसको लेकर प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा? देखिए, बहुत सारी जगह पर लोग जहाँ पर खाली भूमि देखते हैं, चाहे वो तालाब की है, चारागाह की है, खलियान की है या सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। हमारा शुरू से ही ज़ीरो टॉलरेंस के अंतर्गत एक नीति रही है कि कोई भी व्यक्ति कब्जा करता है या तो वो स्वयं हटा ले, अन्यथा जब हम उठाएंगे तो जब से उसने कब्जा किया तब से लेकर उसको अर्थदंड भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी जो जेसीबी है और उसको मलबे को ढोने का जो चार्ज है वो भी उनसे लिया जाएगा। यहाँ पर जो ज़मीन थी जिस पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, उसको हटाया गया है। खुद इन लोगों ने ये मस्जिद हटाई, इतना प्रशासन का खौफ रहा, आगे क्या कदम? सरकार की एक क्लियर कट मंशा है कि कोई भी ज़मीन जो चाहे सरकारी हो या फिर किसी गरीब व्यक्ति की हो, अगर उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर तुरंत उसको हटवाया जाए। 4 महीने पूर्व संभल पुलिस प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि यहाँ गांव के अंदर सरकार की ज़मीन है, उस पर कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाए गए हैं। इन लोगों को प्रॉपर नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद कल तक की म्याद दी थी कि ये स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि इन लोगों के द्वारा बुलडोजर लगा के स्वयं जो इन्होंने जो मस्जिद बन रखी थी उसको तोड़ लिया गया है। उसके अलावा मदरसा है उसको इन्होंने नहीं तोड़ा है, जिसको प्रशासन के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। 8 लाख रुपए का फाइन है इन लोगों पे लगाया गया है। उसके अलावा जो जगह मुक्त कराई है उस जगह पे कई बेसहारा गरीब लोग हैं जिन लोगों के पास ना घर है रहने को, ना ज़मीन है, उन लोगों को ज़मीन भी आवंटित की गई है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर भी दिए जाएंगे ताकि लोगों के छत, एक प्रत्येक व्यक्ति का ख्वाब होता है कि उसके सिर पे छत हो, तो वो भी उन लोगों को मिलेगी। ये एक ऐसी मंशा है सरकार की जो रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब लोगों को बताया। उसके साथ साथ संभल प्रशासन पूर्व में भी बहुत ही संजीदगी के साथ इस कार्य को करता रहा है और जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको समय रहते हटाए जाएंगे। मदीना मस्जिद बनी हुई थी, खुद ही लोगों ने हटा दी है, आज क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये अच्छी बात है कि इन लोगों को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो गई और उन्होंने खुद ही हटा लिया।
और यह भूमि वास्तव में ग्राम के ग्रामीणों के निर्धनतम व्यक्तियों को आवास आवंटन के लिए सुरक्षित भूमि है और आज इस पर आवंटन की कार्रवाई करके उनको कब्जा भी दिया जाएगा। क्या पहले भी आपने लोगों को कहा था कि आप लोग खुद ही कब्जा हटा लीजिए वरना प्रशासन करेगा? ये 2 महीने से ये चल रहा था, इस पर बेदखली के आदेश भी हुए थे, परंतु इन लोगों की हठधर्मिता थी कि इन लोगों ने अभी तक कब्जा नहीं हटाया था। अब खुद ही रात में बुलडोजर चला दिया, प्रशासन का डर रहा जो खुद ही बुलडोजर ले आए? नहीं, ये सत्य का इकबाल रहा जिसके नाते इन लोगों ने अपना कब्जा हटा लिया। तो आज ये जमीन जो है वो कितनी जमीन है और गरीब लोगों ये को 439 वर्ग मीटर भूमि है जो ग्राम के निर्धनतम व्यक्तियों को आज ही आवंटित करके उन्हें कब्जा दिया जाएगा।